Yes, good morning, students. Morning, ma'am. To your class. Good morning to Good all. morning, ma'am. Morning, ma'am. Morning. Good morning, everyone. Ma'am. Now, students, good morning, beta. Now, students, today we are going to start with our book that is Hornbill. And in the Hornbill, we are going to start with the chapter The Portrait of a Lady. First, let me explain you about the heading. This chapter is written by Khushwant Singh. Basically, this is an autobiography. And you all know what is the meaning of autobiography. Means self-explanation by a person. अपने बारे में खुद लिखना, अपनी लाइफ के इंसिडेंसेस, any happenings, incidences जो factual होते हैं. So this is about Khushwant Singh. Khushwant Singh has यहाँ पे इस chapter में Khushwant Singh has explained about his relationship with his grandmother. And let me tell you, Khushwant Singh actually he was very much attached to his grandmother, and he had a good time with his grandmother. So basically in this, he had explained about his grandmother, his lifestyle with his grandmother, and he has explained about the physical appearance, about the picture, about the portrait of his grandmother, and his grandmother's feelings towards him. Now let us come to the heading, The Portrait of a Lady. See the word portrait. Portrait means कोई भी जो आप फोटो देखते हो, पिक्चर देखते हो, physical appearance of a person, and of a lady. Lady is a person symbolizes to Khushwant Singh's grandmother. So this is clear. This is a lady of Khushwant Singh grandmother. He has portrayed about his grandmother. So now students, before that, let me tell you something about Khushwant Singh. Khushwant Singh मैम एक born बच्चा लॉबी में वेट कर रहा है, मैम उसको एडमिट कर लो. लॉबी एक्चुअली ये ना लेट आते हैं और मैंने सभी को एंट्री दी है लॉबी में. ओके, नाउ ही ग्रांटेड. So before that, let me tell you something about Khushwant Singh. Khushwant Singh born on 2nd February 1915, and he was an Indian author. He died on 20th March 2014. He was Indian author, lawyer, diplomat, journalist, and politician. His experience in the 1947 partition of India inspired him to write Train to Pakistan. जब मैंने आपको ये बुक का नाम बताया Train to Pakistan, and I hope most of you may have gone through this novel. Basically, this is based on the partition of India, about the critical condition of that time. So ट्रेन टू पाकिस्तान हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. एंड दिस ट्रेन टू पाकिस्तान, दिस बुक वाज रिटन इन 1956 इन द ईयर. एंड आफ्टर दैट आप लोगों ने देखा होगा उस पे मूवीज भी बेस्ड हुए हैं, और ये जो मूवीज हैं ट्रेन टू पाकिस्तान की जो नोवेल पे डिपेंड है, इट केम इन द ईयर 1998, which became his most well-known novel. And not only that, he was a literary critic and a great novelist also. So now let us move to the chapter. Students, ये जो chapter है, The Portrait of a Lady, it is based on a practical life. As you all have grandparents,
I hope so. And just you think about your relation with your grandparents. I mean, how do they take care of you? And being a grandchild, even it also depends upon you. How you just respond to your grandparents. एक्चुअली यहाँ पर जो खुशवंत सिंह ने लाइफस्टाइल बताई है स्टूडेंट्स, वो लाइफस्टाइल बहुत पहले की है. इफ यू आस्क, आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना स्टूडेंट्स इस लाइफस्टाइल के बारे में कि व्हेन दे वर रिसाइडिंग इन द विलेज, राइट, व्हाट सॉर्ट ऑफ एजुकेशन दे गॉट एंड अबाउट देयर रिलेशंस विद देयर ग्रैंडपेरेंट्स. उस टाइम की एजुकेशन सिस्टम क्या था, राइट, और उस टाइम उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था. लाइक देखो उस टाइम में एक्चुअली व्हाट हैपेंड, एज सच दे वर नॉट कॉन्वेंट स्कूल्स, basically Hindi medium schools were there. And about their eating habits, आप डिस्कस करना अपने पेरेंट्स के साथ कि उनका लाइफस्टाइल कैसा था. और शायद अभी भी आप लोगों ने भी वो लाइफस्टाइल ऑब्जर्व किया होगा, कुछ जो बच्चे विलेजेस में रहते हैं, राइट. जब मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊंगी देन यू विल कम टू नो कि अरे ये चीज तो हम लोग भी एक्सपीरियंस करते हैं. ये बॉन्ड ऑफ अटैचमेंट जो कि खुशवंत सिंह ने इस चैप्टर में एक्सप्लेन की है, इवन वी ऑल हैव, बिकॉज स्टूडेंट्स दिस इज अ यूनिवर्सल फिनोमिनन. इमोशंस, लव, सिंपैथी, केयरिंग, जो हमने आपको बताया था ना, पॉजिटिव एटीट्यूड, एवरीवन हैज. लेकिन वही वाली बात है, शो कोई कोई करता है, राइट. नाउ लेट मी टेल यू इन दिस चैप्टर, actually now खुशवंत सिंह in the starting of the chapter, यहाँ पर खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताया है कि लाइक एनी अदर ग्रैंड मदर, जो उसकी भी जो ग्रैंड मदर है, she looked as an old woman, जो सिंपली एक जो मतलब ओल्ड वुमेन होती है. आप लोग की ग्रैंड मदर्स कैसी हैं, अगर पूछा जाए, मैं आपसे पोर्ट्रेट पूछूं, मैं आपसे पूछूं ओके बेटा, यहाँ पोर्ट्रेट कोई बड़ा भारी वर्ड नहीं है, means the physical appearance of your grandmother. If I ask you, okay beta, tell me something about your grandmother, तो बच्चा सबसे पहले अपने ग्रैंड पेरेंट्स का फिजिकल अपीयरेंस डिस्क्राइब करेगा. ओल्ड लेडी है, स्तूप टू मतलब बेंड, मतलब शी बेंड्स डाउन, झुकी हुई कमर होती है, शी वॉक्स विद अ स्टिक, एंड हाउ शी लुक्स, वेदर शी लुक्स प्रिटी, मतलब जो भी उनका जो आप कलर नोटिस करते हो. वैसे यहाँ पे खुशवंत सिंह बताते हैं कि जो मेरी जो ग्रैंड मदर है वो बाकियों की ग्रैंड मदर की तरह वो बहुत ही बूढ़ी है. और वो उनका ये मानना है कि जो आप बच्चों से पूछोगे, उनका ये कहना है कि गाय जो ग्रैंड मदर है, मतलब शी लुक सो ओल्ड दैट, उनको लगता, जब लोग उसको बोलते हैं ना, when people said that she had once been young and pretty and even had a husband, but that was hard to believe. खुशवंत सिंह मतलब डिनाई करते कि मुझे तो लगता ही नहीं है कि मतलब मेरी जो दादी है वो भी कभी जवान होंगे या उनके हस्बैंड होंगे या उनके बच्चे होंगे. एक्चुअली ये तो बच्चे की मन की बात है, व्हाट द चाइल्ड थिंक्स, कि बच्चा क्या सोचता है. तो ये उसके व्यूज होते हैं रिगार्डिंग हिज ग्रैंडमदर व्हेन खुशवंत सिंह वाज स्टेइंग विद हिज ग्रैंडमदर इन द विलेज. फर्स्ट आपका यहाँ पर इंस्टांस बता रखा है कि अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस. खुशवंत सिंह का ये कहना है उनकी जो ग्रैंड मदर है वो बहुत बूढ़ी है, थोड़ी फैट है, हाइट में छोटी है, उनकी जो कमर है वो झुकी हुई है और वो इतनी बूढ़ी लगती है कि उन्हें लगता नहीं वो कभी यंग थी. अब यहाँ पर खुशवंत सिंह ने डाइनिंग रूम में जो उसकी ग्रैंडफादर है खुशवंत सिंह, उनके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है. जो मेंटल पीस पे खुशवंत सिंह के जो ग्रैंडफादर की जो पोर्ट्रेट है, जो फोटो है, उनके बारे में बता रखा है कि जो ग्रैंडफादर है इवन ही ऑल्सो लुक क्वाइट ओल्ड, बहुत बूढ़े दिखते हैं. ऐसा लगता ही नहीं है कि उनके भी बच्चे होंगे, ऐसा लगता है उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे. सो यहाँ पर खुशवंत सिंह ने दोनों के बारे में एक्सप्लेन किया है, अपनी ग्रैंड मदर के बारे में भी, और जो उनके जो ग्रैंडफादर है वो इज नो लॉन्गर, मतलब वो है नहीं, उनकी डेथ हो गई, लेकिन उनकी फोटो है मेंटल पीस पे, उसके मतलब नोटिस करके उसके बारे में बताते हैं.
अब यहाँ पर जैसे जैसे प्रोसीड होता है चैप्टर, वो खुशवंत सिंह ये बोलते हैं कि जो उनकी ग्रैंड मदर है ना, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, उनका ये मानना है कि उनके ग्रैंड मदर ब्यूटीफुल है बट शी इज नॉट प्रिटी। प्रिटी किस कॉन्टेक्स्ट में? जब हम किसी को देखते हैं, वाओ, मतलब शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज वेरी चार्मिंग, बट लेकिन इस बच्चे को लगता है कि नहीं, मैं नहीं मानता, मेरी जो ग्रैंड मदर है कि इन हर यंग डेज शी हैड बीन प्रिटी, प्रिटी मतलब सुंदर, लेकिन ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल किस सेंस में कहा गया है? ब्यूटीफुल इस सेंस में कहा गया दैट शी इज गुड बाय हार्ट, शी इज अ केयरिंग लेडी, शी टेक्स केयर ऑफ खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह को बहुत प्यार करती है, उनकी बहुत केयर करती है। और उन खुशवंत सिंह ने ये भी कहा है कि शी इज ब्यूटीफुल इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट, शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। इसका मतलब शी इज वेयरिंग व्हाइट साड़ी, व्हाइट फेस, एंड इवन यहाँ पे बता रखा है, इस लाइन से मतलब है विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन मीन्स शी इज काम, शी इज पीसफुल, शी इज कंटेंट ना। अब यहाँ पर बता रखा है, यहाँ पे जब विलेज में वो रहते हैं, खुशवंत सिंह जो उसकी ग्रैंड मदर है, दे हैड अ गुड रिलेशन। यहाँ पर जो ग्रैंड मदर है वो उसको स्कूल के लिए तैयार करती हैं, एंड मीन टाइम जो उसकी ग्रैंड मदर है, शी ऑलवेज कीप ऑन चैंटिंग द मंत्रा। चैंटिंग द मंत्रा मतलब कोई कोई श्लोक पढ़ना, कोई जैसे आपकी भी ग्रैंड मदर की हैबिट होएगी गायत्री मंत्र पढ़ना, राइट, या कोई भी भगवत गीता का कोई श्लोक पढ़ते रहना। तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, व्हाई डू दे डू दैट? वो इसीलिए करते हैं ताकि उनके जो ग्रैंडसन है या उनके जो बच्चे हैं, they would also listen it and they would remember it and they would recite। क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं, राइट, when we just get ready for the work, we just हम भगवान का नाम लेते हैं, कोई मंत्र पढ़ता है, मतलब it gives you a positive energy, it just makes you ready for the whole day। सो यहाँ पर जब वो एक्चुअली बात करके आते हैं, खुशवंत सिंह अपने स्कूल के लिए तैयार होते हैं, ये विलेज का लाइफस्टाइल बता रखा है। तो शी हैज रोजरी बीड्स इन हर हैंड। रोजरी बीड्स क्या होता है? जैसे बूढ़े लोग माला जपते रहते हैं ना, उनके हाथ में माला होती है और ऐसे रोटेट करते रहते हैं मनिए के साथ साथ, मनिया जैसे आगे चलता है वैसे वैसे वो, मतलब आपने मतलब कुछ भी बोलेंगे, जैसे कोई भी मंत्र बोल देते हैं, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, राइट, गायत्री मंत्र करना, ताकि वो ये चाहती थी, खुशवंत सिंह जो है ना, वो इन जो जो चैन करती थी मंत्र, वो उनको सुनते जरूर थे, उनको अच्छा लगता था, लेकिन खुशवंत सिंह ने कभी भी उन उन रिलीजियस वर्ड्स को कभी याद करने की कोशिश नहीं की। हाँ, लेकिन उनको अच्छा लगता था। सुबह एक्चुअली व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम, ऐसे कुछ बुक्स नहीं थी जैसे nowadays in the modern time you just pack your bags with lots of books and lots of notebooks. But during those days what happened, they have a slate। लेकिन आप अपने पूछोगे ना, आपके पेरेंट्स से पूछना, वो लोग कहेंगे कि उन लोगों के पास तख्ती होती थी। तख्ती क्या होता है? जो वुडन मटेरियल होता है, उस वुडन को मटेरियल को वो साफ करते थे, और जो हम बोलते हैं ना मुल्तानी मिट्टी, उससे वो साफ करते थे। एंड दे हैव अ इंक पॉट, और इंक पॉट के साथ एक मतलब कलम कलम बनाते थे, कोई भी जैसे स्मूथ लकड़ी लेते थे, उसको ब्लेड लेके शार्प करते थे, और उसको इंक में डुबो के वो तख्ती पे लिखते थे। बट लेकिन खुशवंत सिंह को उसकी जो ग्रैंड मदर है, शी प्रोवाइडेड जस्ट हिम अ स्लेट, राइट, उसका बैग तैयार करती हैं। और यहाँ पे खुशवंत सिंह जब स्कूल जाता तो ग्रैंड मदर उसको स्टेल चपातीस क्या होती हैं? जो बासी रोटी जो रात को बना के रखते हैं, सुबह खुशवंत सिंह उनको ब्रेकफास्ट देती है उसकी ग्रैंड मदर, और ब्रेकफास्ट के ऊपर वो बटर लगाती हैं और बटर के साथ थोड़ा शुगर देती हैं। दे बोथ टेक दिस ब्रेकफास्ट, एंड यहाँ पे और बाकी जो स्टेल चपातीस होती हैं स्टूडेंट्स, वो मतलब वहां पर जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनके लिए वो लेके चलती है। यहाँ पे सुनो बेटा, पहले इफ यू, क्योंकि बार बार मैंने कहा है, इफ यू डिस्कस विद योर पेरेंट्स, नाउ व्हाट हैपन, पहले क्या होती थी स्टूडेंट्स, एक बड़ी जॉइंट फैमिली होती, राइट, इवन आई डू रिमेम्बर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, और पूरा बड़ा परिवार होता था। तो वहां पर क्या होती थी, जैसे शाम को खाना बनता था, शाम को लोग खाना खा लेते थे, बाकी जो स्टेल चपातीस सुबह रखते थे। और व्हाट हैपन, उस टाइम पे वो जो स्टेल चपातीस हैं
लाइक जो बच्चे स्कूल चले जाते हैं सुबह जल्दी, ओके, और जो वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं, मतलब एक्चुअली एट दैट टाइम फार्मिंग वाज द मेन ऑक्यूपेशन। तो लोग क्या करते हैं, वो ब्रेकफास्ट लेके स्टील चपातीस लेते हैं, या उसके साथ लस्सी लेते हैं या दही लेते हैं, एंड आफ्टर दैट दे जस्ट गो फॉर देयर वर्क। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन, वो लोग चलते हैं। अब उसकी ग्रैंड मदर कहाँ जाती है? एक्चुअली देयर वाज अ टेंपल अटैच्ड टू स्कूल। ग्रैंड मदर अपने ग्रैंडसन को वहां पे स्कूल में छोड़ देती हैं और खुद टेंपल में जाके बैठती हैं। Actually, what she did in temple, actually she sit there in temple, and in there she used to read the scriptures, मतलब बुक्स पढ़ती हैं, भगवान को याद करती हैं, टेंपल में बैठी रहती हैं, और बैठे बैठे she used to listen कि ओके अभी प्रेयर चल रही है, राइट, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। एंड आफ्टर दैट जब स्कूल फिनिश होता है, खुशवंत सिंह अपने स्कूल से आते हैं, और यहाँ जो ग्रैंड मदर है टेंपल से निकलती हैं, एंड दे बोथ जस्ट केम टू होम। And while returning to home, what Khushwant Singh's mother did, what she used to do, मैंने कहा था ना जब वो चलते हैं तो स्टील चपातीस लेके चलते हैं स्ट्रीट डॉग्स के लिए, वापस आते वक्त टुवर्ड्स द होम, वो जो स्टील चपातीस होती हैं, वो स्टील चपातीस वो वहां पे जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको उनको खिलाती हैं। लाइक दैट उनका टाइम पास होता गया। अब ना जो खुशवंत सिंह के जो पेरेंट्स होते हैं, एक्चुअली दे मूव टुवर्ड्स द सिटी। अब वो सिटी में जाके एक्चुअली खुशवंत सिंह और उसकी ग्रैंड मदर को भी वहां बुला लेते हैं। दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन देयर रिलेशनशिप। इसके रिलेशनशिप के बीच में टर्निंग पॉइंट था बिटवीन खुशवंत सिंह एंड दी ग्रैंड मदर। टर्निंग पॉइंट एक पड़ाव था उनकी रिलेशनशिप में। दे रीच टू स्कूल। नाउ अब देखो, विलेज का लाइफस्टाइल एंड सिटी का लाइफस्टाइल, देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन बिटवीन द टू। अब यहाँ पर खुशवंत सिंह as he had to react accordingly। अब यहाँ पर ना ही खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर उसको तैयार करने में हेल्प करती है, ना ही खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर उसके साथ स्कूल जाती है। अब खुशवंत सिंह इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है। अब उसको लेने के लिए मोटर कार आती है, मतलब स्कूल वैन आती है लेने के लिए। When खुशवंत सिंह रिटर्न्ड होम, तो उसकी ग्रैंड मदर उससे पूछती हैं कि आज तुमको स्कूल में क्या पढ़ाया गया। Dan खुशवंत सिंह said, इंग्लिश मीडियम के टर्मिनोलॉजीज बताते हैं, राइट, अर्थमेटिक मीन्स पढ़ाया जाता है, राइट, उनको इंग्लिश प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाते हैं। एंड एक्चुअली जो खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर है, एक्चुअली शी वाज नॉट यूज्ड टू दीज टर्मिनोलॉजीज, एंड वो कुछ नहीं कहती, शी बिकेम साइलेंट। यहाँ पर खुशवंत सिंह उनको बताते भी हैं कि उनको स्कूल में सिंगिंग और डांसिंग भी सिखाया जाता है। When खुशवंत सिंह grandmother listened, जब वो ये चीजें सुनती है, she became very sad। उसे लगता है नाचना गाना ये तो एक बैगर्स का काम है, एक ल्यूड एसोसिएशन है, तुच्छ भद्दा काम है, ये फोक और जेंटलमैन को सिखाने की चीज नहीं है। बट लेकिन आप खुशवंत सिंह उनको कुछ बताते नहीं है कि स्कूल में उनको क्या कराया जाता है। और यहाँ पर जो खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर है, शी बिकेम साइलेंट। और यहाँ पर एक लाइन दी गई है बहुत अच्छी, grandmother she accepted her seclusion with resignation। अब वो seclusion के अकेलेपन में रह जाते हैं without resignation। and after that she didn't say anything, क्योंकि उनको पता था कि अब उनके जो ग्रैंडसन है उनका इंग्लिश मीडियम स्कूल है और उसको टाइम के अकॉर्डिंग अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी है। when he was at school they were sharing the same room, but now जैसे खुशवंत सिंह बड़े होते हैं, actually he was given a separate room when he just went to university। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, this was actually a their relationship snapped, मतलब दूरी आ जाती है उनके रिलेशनशिप में, because पहले they were sharing the same room, but he started going to university। actually खुशवंत सिंह was given a separate room, but still she didn't say anything। अब खुशवंत सिंह बड़ा होते हैं और अब यहाँ पर जो खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर है, एक्चुअली व्हाट हैपन, शी डिड 3 थिंग्स। वो जब सिटी में जाती है, फर्स्ट रोजरी बीट्स ऑफ रोजरी, मतलब माला जपती रहती है, मंत्र चढ़ते रहती है, अपने भगवान का नाम लेती रहती है। एंड सेकंड
From sunrise to sunset, he sat by her wheel spinning and reciting prayers. सिर्फ जो आफ्टरनून होता है ना, actually that was a good time for her. It was a good time for her relaxation. क्योंकि वो बाहर तो कहीं जाती नहीं है. अब वहाँ पे पहले जो स्ट्रीट डॉग्स को फीड करती थी, आज तक किसी में कोई स्ट्रीट डॉग है नहीं. लेकिन आप होगा मैडम हमारी गली में डॉग्स हैं. हाँ होते हैं, यस, बट लेकिन यहाँ पे उस टाइम के बारे में एक्सप्लेन कर रखा. देवर नो स्ट्रीट डॉग्स. सो व्हाट शी डिड, शी स्विच टू स्पैरोज. वहाँ पर उनके वरांडा में स्पैरोज आती हैं, थाउजेंड्स एंड हंड्रेड स्पैरोज वर देयर. तो हाफ एन आवर वो क्या करती हैं, अपनी जो ब्रेड क्रम्स मतलब चपाती लेती हैं, उनके क्रम्स बनाती हैं, एंड शी फीड द स्पैरोज. और स्पैरोज वहाँ मतलब बहुत सारी स्पैरोज आती हैं, चिटपिट की साउंड करती हैं, जिसे हम बोलते हैं बेडलम ऑफ चिरपिंग. चैमे ची ची की आवाज होती है. उनको वो फीड कर रही है ग्रैंड मदर. ऑल द स्पैरोज वर सिटिंग देयर. कुछ उसके हैंड्स पे बैठे हैं, सर पे बैठे हैं, शोल्डर पे बैठे हैं, लेग्स पे बैठे हैं. मतलब यहाँ पर क्या बता रखा है, हर अटैचमेंट टुवर्ड द बर्ड्स. एंड सी और द बर्ड्स भी कितने फ्रैंक है उसके साथ. दैट आवाज क्लियर नहीं आ रही. So now what happened? Okay, are you getting students? So there was a great chirping of birds. अब आ रही है? हेलो आ रही है. Yes, ma'am. आ रही है. हाँ चलो कंटिन्यू करते हैं. So in that way she just spent her time. But now as the time passes, the author decided to go abroad for further studies. और यहाँ पे author बोलते हैं, I was sure my grandmother would be upset. And he was going for 5 years. और शायद वो इतनी ज्यादा बूढ़ी थी कि अगर उनका कोई दुख होता तो शायद could never tell. लेकिन उनकी ग्रैंड मदर ने कुछ भी शो नहीं किया, कुछ भी इमोशन शो नहीं किए कि भाई जो मेरा ग्रैंडसन है, जो आप मुझे दिख तो जाता था, एटलीस्ट घर पे रहता था, बट नाउ ही इज गोइंग टू बी अवे फॉर 5 years. She was not even sentimental. She didn't show her emotions. उसने कुछ भी इमोशंस नहीं दिखाए हैं. बिल्कुल शांत है, स्टिल है, कुछ नहीं कहा उसकी ग्रैंडमदर में. एंड यही नहीं, एक्चुअली शी accompanied him at the railway station but did not talk or show any emotion. जब वो उसको रेलवे स्टेशन पे छोड़ के आती है ना बेटा, जब वो अब्रॉड जा रहा होता है, उस टाइम भी जो उसकी ग्रैंडमदर के जो लिप्स हैं, moved in prayer. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. And she silently kissed his forehead. And when I left, I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. इसका मतलब ये है, जब उसकी ग्रैंडमदर ने उसके फोरहेड पे किस किया, तो ऑथर को लगा कि शायद मेरी ग्रैंडमदर के साथ ना ये लास्ट फिजिकल अपीयरेंस है, ये लास्ट क्यों मुझे टच कर रही हैं, मुझे आशीर्वाद दे रही हैं. इन 5 साल में अगर शायद मैं वापस आऊंगा ना, तो माय ग्रैंडमदर शी वुड नॉट बी एनी मोर. मतलब उन्हें लगता था उसकी ग्रैंडमदर जिंदा नहीं रहेंगी, उनकी एब्सेंस में उनके ग्रैंडमदर की डेथ हो जाएगी, कि वो इतनी ज्यादा बूढ़ी थी. बट समहाउ इट्स ऑल in the hands of Almighty God. When he returned back after 5 years, he found her still at the railway station waiting for him. She received him. और उन्हें देख के लगता है, खुशवंत सिंह बोलते हैं कि उनकी जो ग्रैंडमदर है, अरे मैं जैसी छोड़ के गया था मेरी ग्रैंडमदर तो वैसी की वैसी ही है. She did not look a day older. वो तो मुझे बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं लग रही है. मैं जो 5 साल पहले अपनी ग्रैंडमदर को छोड़ के गया था, आज से मेरी तो ग्रैंडमदर आज भी वैसी है, उतनी ही बूढ़ी है, उनमें कोई भी चेंज नहीं है. एंड व्हाट हैपेंड, शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स. अभी भी वो प्रेयर चैंट कर रही हैं, अभी भी वो मंत्र बोल रही हैं, अपने अपने मतलब उसके जो लिप्स हैं वो मरमर कर रहे हैं, मंत्रास बोल रही है. While she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebuke. कह रहे हैं जब खुशवंत सिंह वापस लेके आए, उस वक्त भी उसकी ग्रैंडमदर जो है अपने भगवान का नाम ले रही है.
She might be just thankful to God. Her grandson had returned back, और उन्होंने अपने grandson को देखा है. और उस दिन वो स्पैरोज को फीड करती हैं. हमेशा वो स्पैरोज को हाफ एन आवर फीड करती हैं आफ्टरनून में, लेकिन आज उन्होंने ज्यादा टाइम स्पैरोज के साथ उसकी ग्रैंडमदर ने स्पेंड किया. अब नाउ देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज केम इन हिज ग्रैंडमदर. जैसे जैसे शाम होती है, a change came over her. उनके अंदर एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है. किनमें? ग्रैंडमदर में चेंज आता है. अभी देखो, जितना भी मैंने आपको बताया है, यहाँ पर सिटी में आने के बाद ग्रैंडमदर ने शायद ही कुछ अपने बेटे से, अपने ग्रैंडसन से कहा है. ये पढ़ाया गया है. शी रिसाइडिंग हर prayers and prayers. Half an hour she fed the sparrows, and she never left her spinning wheel. So now what happened? क्या चेंज आता है? उस शाम को she collected the women of the neighborhood. सभी लेडीज को इकट्ठा करती है अपने घर में. इकट्ठा करने के बाद मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही. ओके, मतलब she collected the women of the neighborhood, and after that she got the old drum. एक old drum लेती हैं and started to sing, and for several hours she just keep on beating the drums. और वो कैसे गाना गाती हैं? वो ऐसे गाना गाती है जैसे सॉन्ग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, जैसे कि योद्धा युद्ध जीत के वापस आता है. और क्योंकि जो उनके ग्रैंडमदर है, ओबियस है, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसका जो ग्रैंडसन है 5 साल के बाद आया है. सो दैट वाज अ ड्रास्टिक चेंज. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल. लेकिन अगली सुबह तक क्या होता है? ग्रैंडमदर की, स्टूडेंट्स आ रही है आवाज? हेलो, क्लियर नहीं आ Yes, रही ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल. वो बीमार हो जाती हैं, उनको थोड़ा माइल्ड फीवर होता है, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं सब ठीक हो जाएगा. लेकिन उसकी जो ग्रैंडमदर है, शी एक्टेड डिफरेंटली, एंड शी टोल्ड एवरीवन दैट हर एंड वाज नियर, कि भाई उसका अब अंत आने वाला है ना. और उस टाइम भी वो किसी से बात नहीं करती है. एंड only a few hours before close of the last chapter, what happened? She was not going to waste even a second. वो अपने रोजरी ब्रीस लेती है. she starting chanting mantras and she starting reciting her prayers. सब लोग उसको बोलते हैं टेक रेस्ट, आप रेस्ट करो, थोड़ा फीवर है, ठीक हो जाएगा. बट यू नो, she knew that her end was near. She lay bed, praying and telling her being, even before giving his back. मैम आवाज नहीं आ रही. मैम आवाज नहीं आ रही. Now she was lying in her bed, and what happened? All of a sudden, Ma'am, your her voice is not clear. the life of the chapter closed. Her lips stopped Ma'am, your moving. voice is not clear. हाँ, हेलो बेटा, मैम आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही. नो थोड़ा बेटा, मैम. मुझे लग रहा है थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है रितिका. चलो फिर भी म्यूट करके आप सुनने की कोशिश करो बेटा. ओके, हाँ जी, अब आ रही है आवाज? Yes, Hello? ma'am. Yes, ma'am, आ रही है. Yes. Okay, so now what आ happened? रही है. Now the last moment of the mother arrived. Her lips stopped moving. वो जो गायत्री मंत्र कर रही हैं, अब उनके जो लिप्स हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, बिकॉज जो उनकी सोल है वो तो मतलब शी इज नो मोर. एंड द रोजरी ब्रीथ्स फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स. सारे मंत्रास बंद हो जाते हैं और उनके हाथ में जो रोजरी बीड होती है वो नीचे गिर जाती है. एंड आफ्टर दैट it seems that she was no more. So what happened? Now the funeral procession started. Our funeral procession सब लगे होते हैं, खुशवंत सिंह, उसके फैमिली मेंबर्स. एक्चुअली जो उनकी जो डेड बॉडी होती है ग्रैंड मदर की, she laid on the floor. और फ्लोर पे क्या होता है? सुनो, जितने भी स्पैरोज को जो उसकी ग्रैंड मदर फीड करती है, all the sparrows just came and just sat around the dead body of the grandmother. I mean, hundreds and thousands sparrows were there, जिनको वो डेली फीड करती थी. But now, आज जो फीड करती थी इन स्पैरोज को, that person,
she was no longer. So now this is the emotions shown by the birds towards the death of the grandmother. ऐसे बोलते हैं ना जानवर बड़े समझदार होते हैं, तो ये जो birds हैं मतलब उनको भी realize हो गया कि now the grandmother she is no more. जब खुशवंत सिंह की मदर उसको देखती कि 1000 sparrows was sitting around the dead body of the grandmother, और डेड बॉडी के लिए एक वर्ड्स बोलेंगे बेटा कॉप्स, CORPS. सो आज का वोकैबुलरिकल वर्ड है आपका कॉप्स. ओके, आप सभी लिख लेना इस वर्ड को. सो व्हाट हैपेंड, ऑल द बर्ड्स वर सिटिंग देयर. तो खुशवंत सिंह की मदर जब उनको देखती है ना, शी जस्ट बॉट द ब्रेड क्रम्स वो लेके आती हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब क्रम्स बनाती हैं, एंड शी जस्ट गिव टुवर्ड्स द just throw towards the sparrows. But none of the sparrows noticed at the crumbs given by Khushwant's mother. And after some time, when the grandmother was taken off, all the sparrows leave the place without noticing at the breadcrumbs. And on the next morning, these breadcrumbs were swept away by the sweepers. So this is all about the short excerpt of Khushwant Singh's life, about his relation with his grandmother. So this is all about, students, the portrait of a lady. And I hope you all have enjoyed it. हाँ जी बेटा, कैसा लगा आपको ये portrait of a lady? Nice. Yeah बेटा? अच्छा है. Very nice. Nice. Okay. I hope you all have Nice listened. chapter. Okay. Thank you बेटा. Yes, ma'am. और आप सुनो, ये मैंने आज आपको समराइज किया है, और जहां तक मैंने कोशिश की है कि मैंने समराइज आपको एक लेंथी वे से किया है कि अगर आप इस चैप्टर को फिर भी रीड करोगे ना, you won't face any problem, and only like rather some of the difficult words. So now tomorrow we'll just go through from line to line and just would explain you again. And now students, one important information, you all listen. Till now, actually we have done 2 topics, note making and unseen passages. और कल तक मेरे पास सभी बच्चों का जो वर्क है, नोटबुक है, वो सबमिट हो जानी चाहिए बेटा, क्योंकि डेली का काम आप डेली करोगे, आपके पास बर्डन नहीं होगा. ठीक है? और मैं आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं दे रही हूँ, कुछ भी नहीं. Whatever the work I do in the class, सिर्फ उतने ही लिमिटेड क्वेश्चंस या लिमिटेड वर्क आई एम गिविंग यू. ठीक है? सो यू जस्ट सेंड योर वर्क, व्हाट्सएप पे अपना वर्क सब सेंड कर देना विद योर नेम्स. ओके, फिर एक्चुअली आई हैव गॉट द नेम्स, मैंने सब लोगों का मैंने रिकॉर्ड बना लिया है ऑफ द स्टूडेंट्स बी एंड सी. एंड नेक्स्ट टाइम ये ध्यान रखना, सभी स्टूडेंट्स का, कुछ बच्चों का काम आ चुका है, राइट, इंक्लूडिंग सेजल. बेसिकली सबसे पहले सेजल का ही काम आया था, और मैं ये चाहती हूँ जो ये सभी अच्छे बच्चे हैं, और मेरे पास टाइम पे सबका काम आना चाहिए स्टूडेंट्स. एंड मैं टाइम टू टाइम एक्चुअली आई एम मेकिंग अ रिकॉर्ड ऑल्सो कि किस स्टूडेंट का किस डेट में मेरे पास वर्क आया है, राइट. सो प्लीज, कोई भी क्वेरीज होती है, कोई भी, हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरा काम है, लेकिन काम करना वो तो आप ही कर सकते हो ना. Excuse me, ma'am. मैडम, मैंने